Hello students, as I told in earlier video that we will learn tables of marginal and total utility in the next video. So we are going to learn it today. This is table showing marginal utility and total utility. So here are units 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Marginal utility from 1 to 4. We will see on one unit marginal utility is 20, on second unit marginal utility is 15, on third unit marginal utility is 10, and on fourth unit marginal utility is 5. You can see easily that on consuming one extra unit of commodity, marginal utility goes on diminishing but it remains positive. When you consume fifth unit, then marginal utility is 0, means this is the point where there is no सेटिस्फेक्शन एंड फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ना तो कोई डिससेटिस्फेक्शन है ना कोई सेटिस्फेक्शन है. ओके, व्हेन वी कंज्यूम 6, 7 and 8 unit, then our marginal utility goes on diminishing and becomes negative. That is on 6 unit it is -5, on 7 unit it is -15, on 8 unit it is -20. So when we consume first 4 units, our marginal utility is diminishing but it remains positive. When we consume fifth unit, then our marginal utility is 0, and when we consume our 6, 7 and 8th unit, then our marginal utility goes on diminishing with negative utility. Then when we go on total utility, now if we have given in the question units and marginal utility and we have to find out the total utility, then how can we do that? See, here is on one unit marginal utility is 20, so we will write as it is in total utility 20. Then our marginal utility on second unit is 15, so we will write 20 of total utility plus 15 of marginal utility equals to 35. Then on third unit our marginal utility is 10, so we will add this 10 on 35. 10 plus 35 equals to 45. We will write this 45 in total utility. Okay, then on fourth unit mu is 5 and tu is 45. 45 plus 5 equals to 50. Then we came on fifth unit. Fifth unit as marginal utility is 0. Okay, our marginal utility is 0 on fifth unit, so 0 plus 50 equals to 50. ये कौन सा पॉइंट है? सेटाइटी का पॉइंट, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन. मतलब यहाँ ना तो कोई नुकसान, मतलब ना तो कोई डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है ना कोई मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है. मतलब अगर लिया है तो भी ठीक है, नहीं लेते तो भी ठीक रहता. सो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 एंड टोटल यूटिलिटी इज 50. Then on 6 unit our mu या marginal utility is -5, so we will minus 50 minus 5 equals to 45. Then on 7th unit it's -15, so 45 minus 15 equals to 30. Here is a error, यहाँ पे आपको करेक्शन करना होगा. 45 के नीचे 30 आएगा. ओके, यहाँ पे 35 लिखा हुआ है. Then on 8th unit there is 20, so we have to minus 30 minus 20 equals to 10. so आपको यहाँ दोनों जगह रेक्टिफाई करना होगा. तो ये आती है, तो आपको समझ में आ गया कि हम टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं. नाउ लेट अस लर्न diagrammatic representation. The marginal utility and total utility can also be explained with the help of the following diagram. हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. आप सबकी बुक में डायग्राम भी है. हियर द मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग अप टू द कंजम्पशन ऑफ फिफ्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी एट अ पॉजिटिव वैल्यू. ओके, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है 5वीं यूनिट तक, लेकिन क्या है? पॉजिटिव है. सो यू कैन सी द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो कि ए से एफ तक है. ठीक है, तो ये 5th यूनिट तक डिक्रीज हो रहा है. यू कैन सी 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 पे आके क्या हुआ? ये लाइन को हमारी एक्स एक्सिस को
इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ज़ीरो वाला पॉइंट, और इसके ऊपर का सारा क्या था 1 to 4, सो ये क्या था पॉजिटिव, एंड फिफ्थ वाला ज़ीरो है। इफ़ द कंजम्पशन स्टिल कंटिन्यूज, अगर अभी भी हम कंजम्पशन कंटिन्यू रखते हैं तो ऑन 6th, 7th एंड 8th यूनिट कंजम्पशन विल गिव नेगेटिव और माइनस यूटिलिटी। हम जो भी कंजम्पशन कर रहे हैं वो हमको नेगेटिव या माइनस यूटिलिटी दे रहा है। यू कैन सी फ्रॉम 6, 7 एंड 8 on x-axis you can see 6, 7 and 8 our curve will goes down and down। हमारा कर्व एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, इट मीन्स क्या, हमको नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है फ्रॉम ई टू एफ। देखो जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स एक्सिस पे ए और एफ कर्व का, वो क्या है ई। सो ए से ई तो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, और ई हमारा पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है, एंड फ्रॉम ई टू एफ इट इज़ नेगेटिव मार्जिनल utility। Okay, so now we will learn mutual relationship between marginal utility and total utility। You should keep looking on the diagram। So first one is marginal utility is the addition to the total utility। marginal utility क्या है, टोटल यूटिलिटी में एडिशन। आप देख रहे होंगे कि जो भी टोटल यूटिलिटी का हमारा आंसर आ रहा था हम उसमें नीचे वाला मार्जिनल यूटिलिटी ऐड करके साइड में लिख रहे थे, फिर हमारा जो टोटल यूटिलिटी का आंसर था उसमें हम अगला मार्जिनल यूटिलिटी ऐड करके साइड में लिख रहे थे। सो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो टोटल यूटिलिटी में एक एडिशन होता है, क्योंकि हम हमारी कंजम्पशन की एक यूनिट बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस टिल द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी तब तक कम होती जाती है, तब तक हम पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन तक नहीं पहुंचते, लेकिन टोटल यूटिलिटी देखो आप साथ में इंक्रीज हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी तो ए से डिक्रीज होती जा रही है और ई तक आ गया, लेकिन उसी टाइम पे हमारा टोटल यूटिलिटी ए टू बी कर्व इंक्रीज होता जा रहा है और बी पे आया है, देन सी पे आया है। जब हम ई पॉइंट पे आए, जब हमने 5th यूनिट कंज्यूम करी, तो हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व मैक्सिमम पे है जो सी पॉइंट है, और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे है जो ज़ीरो पे है। उसके बाद में व्हेन द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन इज रीच्ड, थर्ड पॉइंट देखो, जब हमारा पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन आ गया मार्जिनल यूटिलिटी पे, तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो था और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम था। उसके बाद जब हमने फिर भी कंजम्पशन बढ़ाया, तो हमारा पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन के बाद में भी जब हमने कंजम्पशन किया तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया जो एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, और टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव है लेकिन डिमिनिश होना स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। आप देख रहे हो सी टू डी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता जा रहा है लेकिन पॉजिटिव है। ओके, सो दिस वर द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी। वी विल लर्न table of average utility, total marginal utility in the next video, and we will learn relationship in the next video. Thank you so much.